Good afternoon, guys. This is Azhar. I'm your host today for the show Back to Bahria. We have Sir Junaid Waheed and Sir Haider Bayabani. They are the pioneers of Bahria University, alumni from the very first batches of Bahria University. Sir, welcome to the show. Assalamu alaikum. Good afternoon. Thank you for having us. So thanks to you guys. आप लोग आए हैं. आप मतलब like I got to know that you guys are working in a very high positions and very good company and everything. Sort of. No, I know. तो आप लोगों ने आज वक्त निकाला है आए and thank you so much. We are It's always a pleasure coming to the institution, coming to the university. जब भी हम इधर आते हैं हमेशा हमें बहुत अच्छा लगता है, पुराने वक्त याद आता है. So yes, हम अपने काम से थोड़ा सा टाइम निकाल के आए हैं, but it's always worth it. And it's a pleasure. That's so kind of you, so nice of you. तो हम let's start मतलब let's have a very casual or इस तरह की कि this is from us, the heart, for us, cause as the show's name says, Back to Bahria. Yeah. So I just want to be that Bahrian today at this time, and I want you to be that Bahrian जो कि आज से 98 वाले it was 98 right? 98 now it's 2009 19 right? So you want us to go back go 20 back years. to that time कि उस टाइम पे आप लोग 20 years. क्या था, कैसे था, कैसे start हुआ, music now and that everything. Now that we're here, it seems like yesterday. जब हम अभी एंटर हो रहे थे यूनिवर्सिटी में तो कुछ चेहरे पुराने भी थे, बड़ा अच्छा लगा. गार्ड्स बाहर पुराने हैं, उनसे मिलके बड़ा अच्छा लगा. सरप्राइजिंग भी है क्योंकि बहुत चेंज हो गया है, बहुत सारे कैंपसेस, नई बिल्डिंग्स, नई चीज़ें बन गई हुई हैं. दैट टाइम तो हम इनफैक्ट हमने जब स्टार्ट किया था तो ये कैंपस था ही नहीं, ये नहीं था. देयर यूज्ड टू बी बहरिया कॉलेज जो E8 के अंदर है और इवनिंग में क्लासेस होती हैं. इवनिंग में क्लासेस थी. couple of semesters यूनिफॉर्म वाले टाइम, so एक आध सेमेस्टर वहाँ पे था, उसके बाद ये कैंपस बन गया था. बट नाउ माशाल्लाह द यूनिवर्सिटी इज ग्रोन सो बिग एंड इट्स लवली टू सी दिस. हाँ, बाहर की बेंचेस, कुछ खास एरिया जरूर याद आते हैं कि यार यहाँ बैठा करते थे, यहाँ गिटार बजाया करते थे, यहाँ कैंटीन में बैठा करते थे. 20 years, time flies. It's a long time. अब आपने कह दिया है तो फील हो रहा है, वरना अगेन आते हुए याद नहीं कर रहा था यार. We were like we just came here and we thought कि okay. मैं तो एनर्जी से मतलब नहीं लगता कि आप लोग 20 years back. It seems feels like still मतलब if you notice and everything. Me, I'm wearing a blue pant and a white shirt inside. So अभी भी यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्म है. Still follow the uniform. नहीं, it was I think fall of 98 when we joined this institution. मैं कंप्यूटर साइंस ऑनर्स के प्रोग्राम में से था. I think was the first batch of on the honors program. Junaid was joined the MBA session join किया था मैंने. Lovely memories of course. शुरू में तो कॉलेज के दोस्त वगैरह साथ थे, बट यूनिवर्सिटीज़ में आके नए लोग मिले. जुनैद को I didn't know him before the university. And that's the best part because abhi we were talking with the media department team and all, and it was so fascinating to know, and so I was so excited to see this because हमारे वक्त में we don't have these kind of facilities जो अब हैं ये and so energetic and great people, पूरी team. तो हम लोगों के लिए for us to know this कि एक media department है भाई यूनिवर्सिटी में and all, and this is a studio here. So it's amazing because उस टाइम के ऊपर हमारे पास सिर्फ एक ही एक्टिविटी होती थी कि we all used to wait for a farewell party or a welcome party. और उसके अंदर through that कर ली और party. In fact that's how we met as well. Exactly. मैं ये देख रहा था आप लोगों ने कहा कि हम लोग दोस्त नहीं थे, but then I think लहू Yes. Band आप लोग लहू नाम बहुत बाद में आया. Okay. But so how it all started, like can I tell a few funny stories? Can I tell a few? Yeah, why not? मतलब कैसे बैंड बना, क्या हुआ, कैसे दोस्ती हुई? Since it was the initial batches, तो उस वक्त मास्टर्स का जो प्रोग्राम था वो उसका पहला बैच ग्रेजुएट कर रहा था. Alright. So और एक और बैच इनबाउंड भी था, तो it was a welcome come farewell party. उस दौरान उससे कुछ अर्सा पहले मैंने गिटार उठाया था थ्रू एन इंस्पिरेशन फ्रॉम अ फ्रेंड. अभी भी सीख रहा हूँ, उस वक्त तो बिल्कुल ही बिगिनर था. एक दो चीज़ें आती थी टुन टुन करना, तो मैंने कहा यार ऑर्गेनाइजर्स को कहा कि मैंने आई जस्ट वांट टू डू दिस, एक इंस्ट्रूमेंटल मैंने बजाना है.
करते करते ये हुआ कि इनके कुछ क्लास फेलोज मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि यार आप गिटार बजाते हैं, ये बड़ा अच्छा गाते हैं. ओके. आई हैड नो आइडिया अबाउट हिम, सो आई सेड यार गाते होंगे. मैं नहीं, तो आपने भेजा था या नहीं नहीं अच्छा. that's another क्या जरा क्लास के अंदर एंट्री करा दे. जाके उन्होंने वो ऑडिशन था, तो इट्स सॉर्ट ऑफ वही के ऑडिशन जैसे अभी एहसन ने, शायद एहसन नाम है वो? ऐसा नहीं. हाँ, तो उसने बताया कि जी ऑडिशंस अभी भी होते हैं, तो उस टाइम पे ऑडिशंस होता था, तो उन्होंने कहा कि यार नाम लिखवा दिया. आई वाज इन द क्लास एंड समवन कॉल मी कि जी के ऑडिटोरियम में आपका वो है ऑडिशन एंड यू हैव टू. आई वाज लाइक टेकन बाय सरप्राइज कि किसने नाम दे दिया. मैंने तो I wasn't happy as well because I was a अच्छा, pure grunge. वो तो I said यार कौन आ गया पता नहीं. So इसने and he had that rock star kind of an attitude ना. भाईजान क्योंकि अकेले ही उस वक्त एक गिटार बजाते थे यूनिवर्सिटी के अंदर, तो एक नाम था नहीं. So मैं चला गया. मैंने I still remember that I half-heartedly but I sang a Vital Sign number called तेरे लिए है मेरा दिल without music and all, and I was like short कि मैंने नहीं select होना, but there was the head boy and all, वो जो उस वक्त होता है प्रेसिडेंट होता था सोसाइटी का. Yes, yes, yes. So it used to be Haris, I remember. तो हारिस ने कहा कि you are singing. Okay. अच्छा, he was sitting there and मैंने कहा नहीं मैं नहीं करना चाहता. तो कहता नहीं भाई आपने करना है और तुमने गाना है. तो कैरोके है इसका तुम्हारे पास? मैंने कहा नहीं. तो मैंने कहा वो अच्छा, आई वाज सो नाइव इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि मुझे, मैंने कहा कैरोके, मैंने कहा वो क्या है? तो कहे यार इसका कहीं से अरेंज कर लेते हैं म्यूजिक पर. मैंने नहीं मुझे नहीं पता, मैंने करना ही नहीं. क्या नहीं करना तो है. तो kind of like जबरदस्ती ना. जबरदस्ती. और फिर मुझे भी लोगों ने प्रेशराइज किया कि यार आप कर दें इनके लिए. came up to me जब मैं जाने लगा स्टेज से, तो मुझे कहता हेलो. I still remember he didn't call my name. Hello. यूं करके मैं यूं करके मुड़ा. अच्छा, I was in MBA, he was in BCS, but he have that. मैंने कहा ना कि attitude जो है. He said hello. तो मैंने कहा yes. तो कहा कि यही गाना आता है या कुछ और भी गा लेते हो? तो मैंने ऐसे ही कहा कि कहता है look, I have an idea. मैंने what? कहता है यार एतबार जो आमिर ज़की वाला वर्जन है वाइटल साइंस के साथ, that acoustic version. I know the chords and if you can sing that. कहते मुश्किल है, मगर अगर गा लेते हो तो लेट्स जैम, तो आई कैन गिव यू अ बैकग्राउंड म्यूजिक. दैट was the point. Yeah, that's the start. And when the event happened, the day eventually मैं थोड़ी बहुत practice की, event हुआ, and we thought nothing about it. But the next few days जब classes हुई और हम घूमे फिरे इधर उधर, तो दोस्तों ने, बैच फेलोज ने कहा यार आप लोग बड़ा अच्छा गाते हैं, हम लोग एक बैंड बना लें. आप लोग बैंड बना लें. And I used to laugh कि यार बैंड बनाना कोई, it's not a joke. I mean you need equipment, you need passion, you need dedication, team management. And उस वक्त किसी के पास कोई इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था. I said नहीं यार, बकवास कर रहे हैं सर. हफ्ते डेढ़ हफ्ते बाद मुझे फिर हुआ कि नहीं यार अच्छा मेरे पास एक पुराना कीबोर्ड पड़ा हुआ है, let's do something. तो मैंने इनको एक वफ्त भेजा, एक मैसेंजर भेजा इनके पास, खुद नहीं गया मैं. मतलब नखरे थे ना उस वक्त. मैंने दोस्त भेजा, मैंने कहा यार उससे पूछो अगर इसमें बैंड शैंड बनाना है. one thing which he missed. उसी दौरान में जब हम वो कर रहे थे, तो I wish कि सुहेब इधर होता. So that was another, he's another member of the band and a core and a Barian as well. As a Barian as well. So at that point of time अगर technically देखा जाए, मैं तो अभी भी नहीं अपने आप को समझता, but he and Suhaib was way ahead in the sense कि वो यानी play करता था, he was a great pianist. हाँ, तो he had sense of music. And music बहुत अच्छा sense. And we were just कि शौक से उठाने वाले, करने वाले. cooperate किया कि यार देख कीबोर्ड तो नहीं चाहिए मुझे, because रॉकर, ग्रंज, सो बेस, तो कहते हैं ऐसा करते हैं कि तुम एक और अकूस्टिक पकड़ो, मैं अरेंज कर लूँगा, ठीक है, और तुम उसमें बेस नोट्स बजा दो, एतबार हम करेंगे और ये करें. सो दैट्स हाउ वी फॉर्म्ड अ ट्रायो. ठीक है. एंड देन वो जो ये बात कर रहे हैं ना, एवरीवन वी सेलिब्रेटेड दैट बिकॉज समहाउ लकीली द हॉलमार्क ऑफ दैट इवेंट, दैट मोमेंट, दैट सॉन्ग वाज द वेलकम पार्टी का वो एक सॉन्ग जो था ना, दैट बिकेम समथिंग. So the energy was there. So everybody just so everyone started कि and pushed us. बना लो. And long story short, I mean हम शुरू होंगे तो शायद 20 घंटे भी कम पड़ जाएंगे. तो हम eventually हमने कहा ठीक है, let's get an act together and let's try and do things. और वहाँ से start किया. Over the journey members आए, members गए, देखते रहे. Jam का कोई जगह नहीं होता था, घरों से भी हम छुपते थे. Young students, not too great students, so घरों से भी छुप छुप के करते थे. And the middle class factor कि मतलब वही वाली बात है जो कल हम informally discuss भी कर रहे थे अजर के, you know, parents मतलब they
Bahria is a very prestigious institute even back then. Exactly. So, That was my next question. parents How को, did हाँ, Bahria and teachers, maybe your friends, colleagues, alumni, and how did they help Look, you I always grow believe- career-wise and in I music always and believe everything? this, and for a matter of fact that every institute, चाहे कुछ भी हो, बहरिया भी है, इंस्टीट्यूट बहुत रोल प्ले करता है आपके Yes, उसमें definitely, yes. टू ग्रूम यू. इनिशियली अगर देखा जाए तो कि आई वाज अ बिजनेस स्टूडेंट, Hmm. ठीक है, एंड ही वाज लेटर ऑन ही बिकेम अ बिजनेस स्टूडेंट, बट इनिशियली ही वाज He इनटू was- टेक yeah. स्टूडेंट. तो हम लोगों को बहुत अर्ली इस बैंड के थ्रू एक प्लेटफॉर्म मिल गया. Hmm. हमने मैनेजमेंट स्किल Yeah, सीखी, team वी स्टार्टेड टू management, मैनेज. एक दूसरे के नखरे बर्दाश्त कॉन्फ्लिक्ट ऑफ करना, वो जो time manage कॉन्फ्लिक्ट ऑफ करना. इंटरेस्ट है, इनिशियली बहुत फटे होते थे कि Yes. मैं सही कर रहा हूँ, तुम सही कर रहे हो, नहीं तुम गलत कर रहे हो. Hmm. देन वी स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग ईच अदर, तो Yeah. दैट एलिमेंट केम. Yeah. ठीक है कि ओके ही हैव अ से एंड दिस बैंड बिलोंग्स टू हिम एज वेल, और यू नो. एंड देन अनदर थिंग वाज कि ओके लाइक रिप्यूट, उसका भी आपको जो अब आपको प्रैक्टिकल लाइफ में हेल्प करता है कि यार आप कोई भी अगर आप अपना पर्सनल वेंचर कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मैंने एक रेपुटेशन बनानी है, मैंने करना है Yeah. क्लाइंट को टाइम पे. तो हमने जब वो चीज़ें शुरू की तो वी वर अर्ली इनटू इट कि मतलब अगर कहीं गिग है तो वी हैव टू रीच ऑन टाइम. Hmm. सारी चीज़ें खुद मैनेज करना, उसके अंदर उस बहुत कुछ, you know. बहुत कुछ. as Junaid just mentioned कि I think we got a head start just because कि we formed a band. So we were all from different backgrounds. We were not class fellows. We had no idea about each other. Hmm. इस इदारे, इस इंस्टीट्यूट के थ्रू मिले, मौका मिला, वो एनर्जी पूरी क्रिएट हुई, एंड वो एक मौका मिल गया. उस मौके के थ्रू टाइम मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, एक दूसरे को बर्दाश्त करना, एक दूसरे की स्पेस देना, पर्सनल स्पेस रखना, और उस सारों में करते हुए एक ब्लेंड क्रिएट करना फॉर आवर ओन म्यूजिक. Yeah. जस्ट टू ऐड, जब हमने इधर शुरू किया तो हम इधर भी छुप छुप के, ना सिर्फ घरों से, हम यूनिवर्सिटी में भी छुप छुप के करते थे, बिकॉज वो मना होता था ना कि आप कभी हम इधर बाहर बैठे हुए कुर्सी पे गिटार लेके उधर कर रहे हैं, कभी वो ऑडिटोरियम के बाहर बैठे हुए. बट येस, इट वाज मच स्मॉलर एट दैट टाइम, द यूनिवर्सिटी. सो इट वाज मच मोर कोजियर, यू कैन से. इट वाज मच मोर होमली. अभी मुझे थोड़ा सा इंटिमिडेट करती है यूनिवर्सिटी, देयर इज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, सो यू डोंट रियली नो अ लॉट ऑफ पीपल. उस वक्त द बैचेस वर स्मॉलर, इनिशियल थे, तो इट वाज लाइक अ फैमिली, वेरी क्लोजली knit फैमिली. Yeah. That really helped us. Coming back to what you said कि इंस्टीट्यूट का और क्या क्या रोल है बहरिया का. I believe जैसे जुनैद ने कहा कि हर इदारे, अब लाइफ एक जर्नी, हर उस जर्नी में जहाँ जहाँ आप जाते हैं वहाँ से आप सीखते भी हैं. होपफुली वहाँ को आप वैल्यू भी ऐड करते हैं उस जगह पे, और you take the next step and go to the next level of grooming or whatever, professional and personal. So बहरिया being the universities कोई भी होती हैं तो that's the last stop before you become a citizen, right? Yeah. उससे पहले तो you're a student, कोई जिम्मेदारियाँ नहीं हैं चीज़ें, but after university you enter the workforce, you become a citizen. So definitely I think university का time बहुत ही important है, और बहुत ज़्यादा grooming involved है, क्योंकि उसके बाद by and large आप खुद सीख रहे होते हैं, कोई सिखा नहीं रहा होता आपको. यूनिवर्सिटी में आपको यूनिवर्सिटी तक आपको सिखाते हैं, ऐसे कपड़े पहनने हैं, यूनिफॉर्म पहनना है, ये करना है, वो करना है. उसके बाद आपने खुद, अगर आप में वो ड्राइव है तो आप सीखते हैं. कोई स्पेशली आके आपको सिखाएगा नहीं ज़िंदगी में. Yeah. सो बहरिया से हमने बहुत कुछ सीखा, ना सिर्फ एकेडमिक्स की बात है, थ्रू द बैंड हमने अपनी पर्सनल लाइफ्स में चीज़ें सीखी, मैनेजमेंट सीखी, And we became कॉन्फ्लिक्ट great मैनेजमेंट friends. सीखी. Yeah. That's the लहू की जो अच्छी बात है ना, and I'll be very very मतलब I feel proud in saying this. Yeah. Because to be honest, अगर I don't know what you call a मतलब कि जी active band है या नहीं है. Yeah, we now we play very on a कम हो lesser गया, side हो frequency गया, कम हो गई, because माशाल्लाह अब वही वाली बात है कि you have your priorities and all. So but हम we are very choosy, we play quality gigs still. बट अगर आप पाकिस्तान के अंडरग्राउंड एक्ट्स के अंदर जाएं तो आई वुड से दैट आफ्टर कोवन, या प्रॉब्ली विल बीट कोवन एज वेल, बिकॉज कोवन अब एक्टिव नहीं है या अब नहीं कर रहा, बट कोवन वाज द लॉन्गेस्ट रनिंग अंडरग्राउंड बैंड ऑफ पाकिस्तान. तो प्रॉब्ली वी आर द we're keeping it alive. मुझे दो बड़ी इंटरेस्टिंग आप लोगों के किस्से, एक तो बहरिया के लड़कों वाला जो एक किस्सा है वो आप बताएंगे, इसके बाद फिर हम थोड़ा सा कैरियर वाइज स्टडीज और जो आप लोग अभी जहाँ पर कर रहे हैं और that's very interesting. बट बहरिया के लड़कों वाली एक स्टोरी, और एक जो हेरल्ड में आई थिंक आप लोग जो आपका वो आया था. Because you know, Azhar, when we started this, na, so we, the credit initially goes to him, because he he was brave enough
तो आई विल से हैदर वाज ब्रेव इनफ कि उसने कहा कहता कि ठीक है जो लिमिटेशंस हैं हमारे पास. आई स्टिल रिमेंबर दैट फर्स्ट पैप टॉक के मुझे और सुहेब को इसने बुलाया एंड दैट वाज अ ओल्ड कैंपस. तो वो उसका ग्राउंड था और हम बैठे हुए थे और हमारी समर ब्रेक आने वाली थी, मतलब वो सेमेस्टर ब्रेक थी. तो ही सेड कि यार गाइज आई थॉट दैट वी शुड मेक अ बैंड. तो आई वाज लाइक, मैं हंसा, मैंने ऐसे किया थोड़ा सा म्यूजिक के उसमें मुझे भी समझ आने लगी थी. और वो एक आप स्टेज पे जाते हैं ना जब लोग क्लैप कर दें तो आपका दिल वो हो जाता है, तो आपको मज़ा आ जाता है. इट्स अ काइंड ऑफ एडिक्शन है. तो वो मिल गई थी मुझे. तो मैंने कहा या बैंड, मैंने कहा तो बैंड, मैंने कहा यार ना हमारे पास ड्रमर है और ना हम एक गिटार है तुम्हारे पास, क्या करें, और ना हमारे पास वोकल प्रोसेसर है, ना कोई ऐसी चीज़ है. वो तो खैर बाय द वे इन लोगों ने यार बगैर उसके बड़ा गवाया है, वोकल माइक तो होता ही नहीं था. खैर ही सेड कि यार कुछ नहीं होता, आई हैव अ गुड कीबोर्ड एंड गिटार एंड सुहेब उसमें वो करेगा, तो बेस तुम उसमें दोगे और हम रॉक बैंड बनाएंगे, हम पॉप बैंड नहीं होगा. तो हमने वी स्टार्ट जैमिंग और वो सुहेब के घर छोटी एक कमरे में थोड़ा सा एक उसमें स्पेस में, और मतलब विच यू बिलीव ही हैड नो एम्पलीफायर, इलेक्ट्रिक गिटार था, तो वो अकूस्टिक सॉर्ट ऑफ बजा के उसमें यूं करके हम वी यूज्ड टू प्ले, कान लगा के एंड वी यूज्ड टू जैम. जस्ट टू क्विकली रिकैप, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे. दो तीन क्विक इंसिडेंट्स बताता हूँ विच आर इंटरेस्टिंग. हमने एक सेमेस्टर गुजर गया, जब अगला सेमेस्टर आया था अनदर बहरिया में एक लड़का आया जो कि गिटार बजाता था. एंड आई फाउंड हिम कि यार वो मुझसे काफ़ी बेहतर बजाता है, पहले से बजाता है. तो आई सेड यार व्हाई डोंट यू जॉइन द बैंड. बहरहाल थोड़े नखरे शखरे के बाद वो आ गया. ही यूज्ड टू लिव इन पिंडी. अब हमारे पास पिंडी जाने के लिए भी कोई गाड़ी नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, स्टूडेंट लाइफ थी, ना पैसे कोई खास होते. कचहरी पिंडी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो वी ऑल रिकॉल इट वेरी यू नो क्लियरली कि हमने एक सीडीए का ट्रक का डंपर जा रहा था. एंड वी सेड यार इट्स अ ट्रैश डंपर, लिफ्ट चाहिए. उसने कहा यू श्योर? हमने किया वी श्योर. Trash dump. Yeah. So we sat in the trash dump. Whoa. With just two acoustics. And ऐसे आँख बंद करके we said यार कहाँ फंस गए, but we had no conveyance and we just वहाँ पहुँचे, वहाँ उतरे. So these are some things, cherishable memories. That's some inspiration and that's some cherishable memories. I'm getting like adrenaline like all. इसी तरह I think just to add to the band and through this platform, I think one of the biggest thing that happened for all of us was the confidence of public speaking and public appearance and speaking in front of either a smaller crowd or a big crowd. जो stage fright वाली बात वो आज तक, although we still get jitters when we are doing a gig, वो एक certain element zero नहीं होता वो, but वो बहुत नीचे चला जाता है और आपका 99% confidence होता है कि ठीक है I'll handle it. Take today for example, we had thought and discussed कि यार थोड़ा सा prepare कर लेंगे, चीज़ें कर लेंगे, and I think all of us are impromptu and ठीक है because we'll handle it. कोई मसला नहीं. तो ये that was one of the biggest strengths. Because वो आज तक मैं देखता हूँ कि colleagues, peers, juniors में और बड़ा natural है, खाली हमारे यहाँ नहीं, पूरे world over कि वो stage fright होता है when you come in front of people, when you want to speak or do whatever, address some people. तो वो stage fright बड़ा gripping होता है for on a few people who are otherwise very very talented or very very confident, but वो आके अपना बात नहीं कर पाते. And hats off to these two guys, मतलब especially him, because your first song था वो एतबार. I had that. I would second him that के stage fright होता है और मेरे पे बहुत ज़्यादा. तो इसने मुझे कहा कहता यार ये हम लाइव कर रहे हैं, ये कोई डैट नहीं है, कुछ नहीं है, और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी डैट बजाया भी नहीं है. तो जब भी प्ले किया तो इसने क्या कहता है कि यू हैव टू इंटरेक्ट विद द क्राउड. जब हम वो प्रैक्टिस कर रहे थे एतबार ओनली सॉन्ग, तो मैंने कहा यार मैं ये नहीं करूँगा. कहता है नो यू हैव टू वॉक, वो एक रैम्प बना हुआ है, तो थोड़ा सा वॉक करना, कहना है कि पुट योर हैंड्स टुगेदर. इधर मैं सिर्फ एक वी विल जस्ट स्टम द गिटार एंड यू जस्ट. तो मैंने ऐसे कहा मैं नहीं करूँगा. कहता है मैं हम अच्छा ये दोनों स्टूल पे थे, तो ही सेड कि हम स्टूल पे बैठे होंगे और मैं तुम्हें नेक से पीछे से धक्का दूँ अगर तुम नहीं. कहना वो बहुत एब्रप्ट लगेगा जुनैद. एंड आई हैड टू डू दैट, बट फ्रॉम देन दैट थिंग गेव मी वो एंगेज करना, वो कॉन्फिडेंस करना. सो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं.
सो वो बहरिया के लड़कों वाली जो आप लोगों की स्टोरी है वो बड़ी लाइक आई गॉट टू नो हाँ, कि यार बहरिया that's- के लड़के मशहूर हो गए, मतलब वो हाँ, क्या हाँ, स्टोरी है, band with आई वुड no लव टू हियर दैट. So quickly Yeah. quickly Yeah. taking you through that memory lane. 98-99 में जब हमने ये किया वेलकम इवेंट, अगेन कोई बैंड नहीं था, बैंड बन गया, नाम कोई भी नहीं था. अगली वेलकम आई, हमने फिर टुगेदर विदाउट अ नेम हमने वो किया. उसके बाद थ्रू एन इंटरनेट फ्रेंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि जी नस्ट में एक बैटल ऑफ द बैंड्स टाइप हो रहा है, Right. तो आप भी आ जाएं. तो शुरू में वी वर स्केर्ड बिकॉज देयर वर अ लॉट ऑफ बैंड्स वी यूज्ड टू लुक अप टू देम एज वेल. शहरियार होता शानी था, and शानी वगैरह होते थे. अंडरकरेंट के नाम So, से and they used to play live Pink Floyd and Led Zeppelin and, Oh, and I Jimi was like, yeah, Hendrix. great, these guys are doing great. They had the whole set, drum kit वगैरह. हमारे पास कुछ भी नहीं होता था, एक तबले वाला हमने ढूंढ लिया था Ah, कहीं yes, से. वो एक he was दो good. गिटार्स थे. So we were a bit apprehensive, but I said चलो experience होगा. When we got the gig कि ठीक है आप आ जाएं, so हमारे उस सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया. And I dropped my GPA. Okay. So, without indulging into too many details, I was not allowed by my father to. Grounded. I was grounded, basically. For that, कि यार नहीं, you're losing your grades. You got to focus back. Having said that, That हमने was a एक huge setback. मतलब temp- एक बंदा जो कि you know temp guitar Yeah. player पकड़ा और हम Who चले like- गए. yeah. सबको हम- लेकर हम- चल रहा है. Great और friend he's of a- ours, Ali Hussain. He's a Bahrain as well, and he is Dubai in में States में? हाँ, States he's में in शायद? no, he's Dubai. not in States, in Dubai, doing very well. So Ali हमारे साथ jams पे ऐसे ही बैठा होता है जो random you know, तो इसको इसने कहा कहता है So he यार, filled Ali in. कुछ He filled in, and we all went to the to NUST. He didn't. EME actually, EME Yeah, college, EME. right? वहाँ पे अगर आप स्टोरी सुनाएंगे कि Sir. अगले बैंड्स के साथ क्या हुआ. हुआ ये कि अच्छा हम अल्लाह अल्लाह करके पहुंच गए वहाँ पे and that was in Kohinoor वो EME Yeah, का जो है, yeah, say, it's so like for us at way that too point of far. time way Yeah, too it was far too और far. ना कोई convince इस तरह का कुछ नहीं था. तो पहुंच गए किसी फ्रेंड के थ्रू. अच्छा पहुंचे तो हमने उनसे कहा कि यार यू नो वी आर कमिंग फ्रॉम इस्लामाबाद, सो आप हमें परफॉर्म करवाएं और हमें जाने दें. अच्छा वहाँ GCs वगैरह थे, उनकी छुट्टियाँ हुई थी, तो वो ज़बरदस्ती छुट्टी कराई गई उनको, उनकी रोकी गई और उनको वहाँ पे तो दे वर लाइक They were already frustrated कि यार हमारी छुट्टी रुकी हुई है. और ये सारे अच्छा उनके अपने बैंड्स थे कुछ और अंडर करंट वगैरह. अच्छा उन्होंने क्या किया कि पहले अपना एक बैंड लाए, मिडी के साथ उन्होंने प्ले किया, दो पल का जीवन, आई स्टिल रिमेंबर द सॉन्ग. पीपल वेंट वेरी हैप्पी ना, बड़ा नाचे वाचे. उसके बाद उसने बेड ऑफ रोजेस कर दिया. मुझे अच्छी तरह याद है हम फ्रंट पे बिठाया हुआ था, उन्होंने बैंड सुना तो एक बोतल पानी की ना उधर स्टेज पे आ गई. तो अदनान जो इसका नाम नहीं लेते, अदनान वाज आवर फर्स्ट लीड गाय, तो अदनान वाज देयर. तो अदनान ने मुझे कहा, कहता है डूड मैंने तुझे कहा था कि इधर आना जो है ना खतरनाक है, मैं अभी भी कह रहा हूँ लेट्स गो, डोंट प्ले. तो आई सेड कि यार तो अच्छा हमने उसने वो बैंड उतरवाया, ऑर्गेनाइजर ने उसने देखा कि वो है. उसके बाद अगला बैंड आया, उसके बाद अंडर करंट को ले गया है वो, मतलब दे वर टाइट एक्ट, जो ड्रम्स हैदर ने बताया, और वो दे स्टार्ट प्लेइंग हे जो, तो वो तो वैसे ही एक्सेप्टेबल नहीं था. अच्छा हमारी प्लेलिस्ट के अंदर भी हमने वो रट्टू बैंड नहीं होता कि 8 गाने तैयार करके गए, तो रट्टे हुए थे हम. होटल कैलिफोर्निया भी रखा हुआ था. ओके. तो सुहेब वाज वेरी मतलब शार्प, तो ही सेड के डूड English होटल नहीं चलेगा, हाँ. कैलिफोर्निया हमने करना ही नहीं है. जो English जुनून गाना के नहीं करना नंबर है. हैं और वाइट, इवन आमिर जकी का भी किया हुआ था हमने, मेरा प्यार कहता है वो भी नहीं चलेगा. He'll just do जुनून नंबर, दैट्स इट. खैर जी उन्होंने वो बंदा आया, कहता है यार आप लोग स्टेज पे जा रहे हैं. मैंने उसे मना भी किया, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा कोई मसला नहीं है भाई, खाली होने दो. मैंने कहा, आराम से चले जाएंगे. तो कहता है नहीं यार आपने जाना है, वो तबला वाला भी आपके साथ, आपका तबला भी है. तो कहता हमने कहा हाँ है. तो कहता है यार आप जाएं ऊपर. अच्छा जी हम चले गए स्टेज पे. आई स्टिल रिमेंबर यार आप बहरिया में जब परफॉर्म करते थे ना, पीपल नो, वो जैसे हैदर ने कहा ना, लोग कनेक्टेड थे, तो अपने लोग दे यूज्ड टू अप्रिशिएट एंड मोटिवेट. वहाँ तो इट वाज लाइक यू वर नो वन. सो दैट वाज फॉर मी स्टेज फ्राइट जिसे कहते हैं. मतलब मैंने अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा फ्राइट मैं कभी नहीं मुझे फील हुआ, फियर. कितना 800-900,000 बंदा था और वो सब लड़के, और ऊपर एक गैलरी थी, उधर कुछ फैमिलीज थी, फैकल्टी थी. तो ऐसे मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा यार आप लोगों को सलाम किया, तो सलाम का जवाब आया जैसे आता है ऑडियंस का. तो कहते हैं, मैंने कहा यार आप लोगों को जुनून पसंद है. तो आई स्टिल रिमेंबर एक दो लोगों का फ्रंट से ही वहाँ से आया, कहता तू गाएगा. ओह अच्छा. अच्छा वो दिन आज के दिन मैंने कहा ऑडियंस से ऐसा सवाल नहीं ऐसा देखें जो हैंडल हो सके. So, And we अच्छा. sang, and somehow यार Azhar, that was the journey from, I guess वहाँ से journey जस्ट टू क्लोज 8 गानों में से 2 तो साइड पे हो गए थे, 6 रटे हुए थे, 7वां नहीं आता था. 6 रटे हुए थे. जब 6 पूरे हो गए हमने कहा थैंक यू. लोगों ने कहा क्या मतलब थैंक यू.
और गाओ। गाओ। यही वो ऑर्गेनाइजर है, हमने कहा यार हमें तो और नहीं आते, उसने कहा यही वही 6 गाने हमने दोबारा गाए। Wow, that's So वो amazing. कैसेट की बी साइड हमने लगाई और वही 6 गाने रिपीट कर दिए Yes. दोबारा से। That's cool. That was great fun. that was the point probably from that point to Yasir now. Jaswal's OST till now, और मतलब and then the Herald Music में जो नदीम फारूक पुराचा ने पूरी हिस्ट्री लिखी पाकिस्तान म्यूजिक में and getting your Yeah, name that's very there. heartwarming. So that was something कि यार we started off from Bahria and we never thought of आप लोगों के बैंड का नाम नहीं था और जब वो उन्होंने हाँ, पूछा कि तो जब ये खत्म हो गया और ऑब्वियसली बिकॉज वी सैंग उर्दू एंड उन्होंने कहा जुनून, तो बहरिया उन्होंने कहा के जी उन्होंने क्राउड से वोटिंग की, कौन, उन्होंने हूटिंग की कि यार ये लड़के अच्छे हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा जी ये लड़के जीत गए, आपके बैंड का नाम क्या है? तो बैंड का नाम तो था ही नहीं, तो हमने कहा बैंड का नाम तो नहीं है, बहरिया से और हैं जब हम लोग। वोटिंग हुई ना, वोटिंग जिसे कहते हैं योर चॉइस, तो द हार्ट वार्मिंग थिंग फॉर अस एंड आई स्टिल रिमेंबर द चैंट्स के बहरिया के लड़के, बहरिया के लड़के, तो ये मशहूर हो गया कि अच्छा जी बहरिया के लड़के जो है ना, with this, ये हमारा ठीक है, स्टिक एक किस्म का band लग गया yeah. कि यार बहरिया के लड़के हैं, ये बैंड का नाम बना। बैंड का नाम बहरिया के By the way, just to That's cool, add, man. because there are interesting stories and हमें याद आ रही हैं as we traveling through the memory lane, नाम भी हमने कैसे चुना कि हमारा Polo, हमने एक सर्वे करवाया, आई मीन एक प्रिंट आउट लेके फोटोकॉपीज करके दोस्तों यारों से सर्वे कर लिया, और उसमें लोगों ने मजाक भी उड़ाया, लोगों ने अच्छे नाम भी सजेस्ट किए। तो वन ऑफ आवर कोलीग्स नौशाद, ही इज आल्सो अ बहरियन, ही इज आल्सो इन अ वेरी गुड पोजीशन। Oh, yes, he is in- आई थिंक इज इन सिल्क रैंक। तो उसने वन ऑफ द सजेशंस वाज लहू, and it kind of clicked with us because it's small, it's short, it has meaning behind it. You could associate a philosophy behind it, and it sounds rockish as well. So we said, "यार लहू हम रख लेते तो हैं." हम यही कहते हैं कि ये बेसिकली अगर नाम भी देखें ना कि बैंड की ओनरशिप अगर देखा जाए तो इट्स इन एक्चुअल इट्स अ बहरिया बैंड, बिकॉज Yeah. बहरिया यूनिवर्सिटी के पोल से ही वी सिलेक्टेड अ नेम, Yeah. वी खुद से हमने नाम नहीं रखा, तो वो मगर उसके अंदर बड़े इंटरेस्टिंग नाम थे यार, जो फनी एलिमेंट था, आई डोंट नो जिन्होंने भी लिखे कुछ के तो नाम याद है मुझे, जिसमें एक आया पतीले, किसी ने लिखा चमचे, किसी ने कुछ जुनून टू, टू जुनून wannabes, because हमने जुनून बजा बजा के ही म्यूजिक सीखी है actually. So for the first 3-4 years we played nothing but जुनून. वो एक किस्म की वो भी छाप लगती जुनून गई. एक सबकी Oh, इंस्पिरेशन yes, was that that time, one. man. Oh. Like Still, I think it's one of the most still killer there bands and Pakistan has very, ever like, produced. Nothing can beat. Oh I yes, think yeah, Junoon. still Yeah. they are And, still uh, मतलब have a वो unique really- sound. Yeah. Yes. And everything. Amazing. बेहतरीन. Yeah. So I would like to request a small हो जाए maybe कुछ? एक छोटा सा क्यों कहे ये सितम आसमाने किए, क्यों कहे ये सितम आसमाने किए, आसमान से हमें शिकायत नहीं, दुख है जो भी दिए आसमान दे दिए। ओ, ओ, चंद लोगों के हाथों में है जिंदगी, छीन लेते हैं जब चाहते हैं खुशी, ऊंचे ऊंचे घरों में जो है रोशनी जल रहे हमारे लहू दे दिए।
ये सितम दीप बुझने न देंगे, मोहब्बत के हम देखना बीत जाएगी शामें आलम, जी रहे हैं यही आस दिल में लिए। क्यों कहे ये सितम आसमां ने किए, क्यों कहे ये सितम आसमां ने किए। Alright. Whoa, yeah, like amazing. Thank you so much. Thank Thank you you. so much for like Thank you. doing this. And I think we should, I should request the higher officials that we should keep some evening. It's like cold winter Oh, night. we would love to. Let's have We a would like love to. bonfire over here. Oh, so, yes, like, why not? And we invite you guys and have a like a jamming session. I think even And, more so. that would be- I think adding on to that idea. Yeah. क्योंकि एक दो alumni dinners पे हम भी आए हैं, उमेर Yes, भी yes, आया yes, है, yes, yes. and it's always a pleasure coming back to Beria. I think not just a show. Yeah, yeah. अगर एक किस्म का Meet and greet. yeah, meet an and evening greet, with an evening the with the alumni, and you alumni just come, and listen to the music, Yeah. talk to them, get to Absolutely. know about like Their stories and their how memories. to pursue your career, how to pursue your ambitions and goals, Very true. how to pursue maybe music. Yes. True. You guys could be, I would not say could be, you guys should be you guys are the mentor, like for the upcoming Thank you. generation who wants to like people want to pursue like उनको ये इंस्पिरेशन चाहिए कि यार मतलब एक डंपर पे बैठ के लोग ऐसे जाना है और Let's आजकल, hope not कि मतलब आप हाँ, किसी but को करना पड़े, लेकिन but ये कि still if you want to do something, you want to pursue your Yeah. career, you want to pursue your passion, you have to Absolutely. do these things. yeah, then There is no then challenges are Yeah. Yeah, yeah. they're just It's so- steps, they're just so hurdles that you need exactly, to overcome. exactly. फिर ये वो boundary नहीं बन सकती, वो आपको रोक नहीं exactly सकता. very very true. I'm inspired. Like I didn't know these stories, and I'm inspired, and I'm like glad that I like I've come to Yeah, know you guys. such- And अब हम थोड़ा सा challenges और career की बात हो रही है तो इसको हम थोड़ा सा career wise let's कि बहरिया से graduate हुए और थोड़ा सा career में आप लोग अब कहाँ थे, कहाँ पहुँचे, क्या हुआ, and So okay, what I'll try and do is take you through from graduation till now, yeah, but quickly of course. Sure. मैंने फिर बहरिया से ट्रांसफ़र करा लिया टू कनाडा. जब ये मैं इसलिए कहता हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, आई फील कि ये यूथ को आज पता होना चाहिए. जब मैं वहाँ गया और वहाँ से वापस आया तो आई टोल्ड ऑल माई क्लास फेलोज़ एंड बैच फेलोज़ कि यार किताबें तो वही हैं जो यहाँ पढ़ रहे थे, एग्जैक्टली वही हैं, वही एडिशंस हैं. सो व्हाट्स द डिफरेंस? I think the only difference is one, confidence level of an individual. वो आपको ग्रूम करते हैं, फेंकते हैं, पानी में डालते हैं ताकि आप तैरना शुरू करें. यहाँ पे हम थोड़े से पैम्पर्ड होते हैं, राइटली सो, क्योंकि हमारी फैमिलीज होती हैं तो हम पैम्पर्ड रहते हैं. एंड जस्ट द कनेक्टिविटी बिटवीन द इंडस्ट्री एंड द एजुकेशन इंस्टीट्यूट, Absolutely. दैट इज़ व्हाट इज़ मिसिंग. आई थिंक पाकिस्तान में ये मिसिंग नहीं कहूँगा, पीछे हैं हम उसमें. okay. We need to catch up. The universities and the industry need to be very close to each other. Yeah. I think that's the only difference. Considerable difference जो मुझे लगा कि यार वहाँ पे जो latest industries हैं, research है, वो यूनिवर्सिटी से आके करा रहे होते हैं. और यहाँ पे because वो missing है element, तो more or less ज़रा रट्टा तोतू वाला हिसाब बन जाता है कि यार ठीक है रट्टा लगा के भी काम हो जाएगा, which eventually hurts the individual. बिकॉज बाहर जाएंगे तो जैसे मैंने कहा ना कि इसके बाद आपको कोई सिखाने वाला नहीं है. True. इसके बाद इनफैक्ट आपको गिराने वाले बहुत हैं. दुनिया ऐसी है, दुनिया खींचती है आपको. सो हैविंग सेड दैट, वहाँ से हम ये ज़रूर एक कॉन्फिडेंस मिला, अकेले रहने का हुआ. वापस आया, यहाँ जॉब की. दिस इज़ माई 4th जॉब जो अभी मैं कर रहा हूँ. फर्स्ट जॉब मैंने की कोई 1.5 साल के लिए UBL के अंदर, होम लोन्स की. उसमें अच्छा एक्सपीरियंस है, लर्न करता है आदमी. अगला मैंने फिर 1.5 साल एक लोकल वेटनरी फार्मास्यूटिकल के साथ किया. During this time, in fact during my before I was graduating, I had realized कि यार I can do the CS thing, I can do the IT industry thing, but I'm not
इंस्पायर्ड और फैसिनेटेड बाय इट एनी मोर। उस वक्त 98 में .com बूम आया था, भेड़ चाल में हमने भी ज्वाइन कर लिया, इट वॉज वेरी कूल, बट बाय द टाइम आई वाज ग्रेजुएटिंग आई रियलाइज कि यार इट इज़ ग्रेट बट इट्स नॉट फॉर मी। सो ये 2 जॉब्स करने के बाद ये थोड़ा और पुख्ता हुआ ये एहसास, और फिर मैंने MBA ज्वाइन कर लिया बहरिया में, बिकॉज आई लाइक इंटरेक्टिंग विद पीपल मोर, आई एम मोर ऑफ अ रिलेशनशिप बिल्डिंग गाय देन एनीथिंग एल्स। तो कंप्यूटर स्क्रीन से हट के हम थोड़ा सा इस साइड पे आ गए। MBA कर लिया, MBA ग्रेजुएट करने के बाद आई वर्कड फॉर अ ईयर और ईयर एंड हाफ विद एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी. Again, I think one of my most favorite work experiences because it was very creative, very happening, very fast paced. But I would like to say I think the advertising industry in Pakistan is a little immature in the sense के जो clients होते हैं उस तरह से respect नहीं है agencies की और उस creative work की. Unfortunately हमारे किसी भी creative work की, चाहे music ले लें, movies ले लें, dramas ले लें, ads ले लें, उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं की जाती या उस तरह से उसको वैल्यू नहीं किया जाता. वो पिछले दिनों भी वन ऑफ आवर कोलीग्स अब्बास का स्टेटस था ऑन सोशल मीडिया कि क्या आर्टिस्ट्स ने बिल्स नहीं देने होते, क्या उनकी फैमिलीज नहीं होती. सो वो एक रिस्पेक्ट आई थिंक अभी भी लैकिंग है हमारे यहाँ, एंड वी नीड टू ग्रेजुएट ऑन दैट, द सूनर द बेटर. बहरहाल वो 2008 आया एंड आई जॉइंड अटक पेट्रोलियम लिमिटेड एंड आई एम देयर alhamdulillah now, so almost 12 years now. Currently I'm looking after the national sales for corporate B2B. Okay. Lord has been very kind. Alhamdulillah. The organization has been very kind and learned a lot of things. और फिर अपने जितने शौक थे वो अब उस ऑर्गेनाइजेशन में भी डालता जा रहा हूँ. मिसाल के तौर पे एडवर्टाइजिंग का शौक था, ब्रांडिंग का शौक था, तो वहाँ ब्रांडिंग का डिपार्टमेंट बना के उसको लीड कर रहा हूँ साथ में. म्यूज़िक का शौक है तो वहाँ HR के थ्रू पुश करता रहता हूँ इंटरनल टैलेंट इवेंट्स को, कोई आउटिंग्स को, कोई एनीथिंग जिसका जो भी शौक है वो करे. सो वो ज़ाहिर है उसको कैरिंग इट अलॉन्ग, कैरिंग द बैंड अलॉन्ग. पहले हम बहुत लड़ते थे, अब बहुत कम लड़ते हैं. लेकिन अब मिलना कम हो गया ज़ाहिर है, बिकॉज एज ही सेड की प्रायोरिटीज़ या फोकस थोड़ा सा बदल जाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है. Obviously. But we do keep things alive. आज जैसे हैदर ने बताया, मज़े की बात यह है कि मैं इन लोगों को अक्सर पॉइंट पे मारता हूँ, दोनों को. स्पेशली मैं दोनों की बात इसलिए करता हूँ कि सोहेब इज स्टिल कनेक्टेड. इनफैक्ट जब ये वो देखेगा प्रोग्राम सोहेब, तो आई एम श्योर कि ही इज़ गोइंग टू वॉच दिस. हुआ ये मेरे साथ ये था कि आई डिड माई ग्रेजुएशन एंड आई वाज, मतलब जब हुआ ग्रेजुएट तो आई लैंडेड अप इन बैंकिंग. आई वोंट बी नेमिंग द बैंक बिकॉज सम सर्टन कुछ रिजर्वेशंस होती हैं ऑर्गेनाइजेशन, बट आई एम वर्किंग फॉर अ मल्टीनेशनल बैंक अल्हम्दुलिल्लाह एज अ वाइस प्रेसिडेंट एंड हेडिंग ए ब्रांच. बट येस, इंस्टीट्यूट जैसे हैदर ने बताया कि बहुत हेल्प आउट किया. वही चीज़ के जो ये प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिला, जो कॉन्फिडेंस मिला, बिकॉज जब वो जॉब मिली तो दैट वाज इनिशियली दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो आई वाज, मतलब आई डिड माई मास्टर्स इन मार्केटिंग बट आई एंडेड अप इन सेल्स. So banking sales was a very different all to all. But the thing which helped me was my band and the university का जो confidence था ना कि okay go getter, go बैठ जाना है, कोई बात नहीं है, कौन है, मिल लूँगा, कोई इशू नहीं है, बात कर लूँगा. And at times yes, वो जो, और दूसरा उसी organization में banking के अंदर ही, मतलब जैसे हैदर ने कहा कि music we did certain events there as well, because they came to know that I am into music and this and that, so वो भी हुआ and वो सारी चीज़ें हैं. So God have been very kind, but yes, इन लोगों को मैं जो point मार रहा होता हूँ वो ये होता है कि 99 में when we formed Lahu, Heather went for a brief period to McGill. So the point is, मैं से कहता हूँ मैंने कहा मुझे भी जाना है. The constant in our band is Junaid. Just to add, since ये forum ऐसा है, I would like to add this. Theory और practical life, हम ये सुनते हैं कि बहुत फ़र्क है. बहुत फ़र्क नहीं है, attitude में फ़र्क है. Theory ही है. Theory क्या होती है? Any practice which has been established and formed over a certain period of time, वो theory बन जाती है, right? वो proven theory होती है, इसलिए वो theory बन जाती है. So वो बहुत अलग नहीं है practical life से. It's just that मैंने ये फील किया, स्पेशली जब मैं कनाडा से वापस आया था, मैंने ये फील किया कि यार बड़ा लेट बैक एटीट्यूड होता है स्टूडेंट का पाकिस्तान में. कर लेंगे, असाइनमेंट भी छाप लेंगे, हो जाएगा, फाइन, ये सब करते हैं. आई थिंक ये मेमोरीज होती हैं, छापना भी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए.
बट वो एक ड्राइव नहीं मिस होनी चाहिए. When a candidate comes to me, मेरी अपनी टीम में इस वक्त there are at least 3 or 4 variants. जो डायरेक्ट मुझे रिपोर्ट कर रहे हैं. मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में there are at least 15-20 variants. And they are good people, they are good resources. However, 200 आए होंगे जिनको मैंने मना किया. The only thing lacking is that attitude. कि काम करना है. एंड ग्रेजुएट करके ये नहीं समझना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को कि यार अब मैं अफसर बन गया हूँ. इस तरह एक मिसाल देता हूँ. फौज में जब हम जाते हैं, आई हैव बीन वेरी क्लोज टू फौज क्योंकि वालिद साहब वाज इन द नेवी एंड एवरीथिंग. सो मैं ज़रा आसान रहता है मुझे मिसाल देना. आप काकूल जाते हैं जब एकेडमी, तो वो क्या करते हैं, चाहे आप सेलर के बच्चे थे या चाहे आप जनरल के बच्चे थे, वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो सरिया निकालते हैं गर्दन से, वो नीचे रगड़ते हैं, कहते चलो फ्रंट रोल शुरू हो जाओ. No matter what, that is what the corporate world does to you as well. You can't expect him. क्योंकि मैं MBA और अब सुमा cum laude और 4.0 GPA ले आया हूँ, तो मैं हैदर साहब के पास जाऊँगा कि जी मैंने तो असिस्टेंट मैनेजर नीचे मैं मारूंगा एक रख के. I'll go do the reporting, फोटोकॉपियाँ करो, बिल उठाओ, फाइलिंग करो, एंड काम कोई भी छोटा या गलत नहीं होता. ठीक है. अब मैं अपने कोलीग्स को, अपनी टीम को ये कहता हूँ कि यार घर में अगर 3 दिन सफाई वाला ना आए तो क्या करते हो? Do you keep on sitting in trash? No, you get up and you get it done. So कोई काम छोटा, बुरा, गलत नहीं होता. इज्जत दें आप सबको, हर इंसान को इज्जत दें. खुद इज्जत अपने उससे माने, सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी होनी चाहिए, दूसरे की होनी चाहिए, और काम करें. अभी भी एक वेरी रिसेंट देयर इज अ न्यू एम्प्लॉई इन माय टीम, कहता सर देखना मेरा तो ये, मैं कहा बच्चे ये सारी चीज़ें तो तुम 8 बंदे कर रहे हो, ये मैं 8 साल पहले अकेले कर रहा था. ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड कम था, स्केल छोटा था उसका, बट ये मैं सारा कर रहा था. तो इसमें शर्म वाली क्या बात है? आप ना सिर्फ अच्छे लोगों से सीखते हैं, आप बुरे लोगों से भी सीखते हैं. आप हर चीज से सीखते हैं. आप बुरे बॉस से सीखते हैं कि यार बुरा कैसे नहीं होना. मेरी जब टीम आएगी तो मैं उसके साथ क्या क्या चीजें नहीं करूंगा. सो वो लर्निंग वाला एलिमेंट हमेशा रहना चाहिए, और एटीट्यूड हमेशा ओपन एंडेड, रेडी टू जंप ऑन थिंग्स. एंड वही वाली बात कि एक वो प्री कंसीव नोशन ना बना लें शादी के बारे में, जिंदगी के बारे में, दीन के बारे में और जॉब के बारे में, कि ऐसी होती है क्योंकि हमने मूवीज में देखा है. पॉइंट वही है कि इंस्टीट्यूट जो होता है आपका बहरिया, मतलब बहरिया में जो अभी करंटली पढ़ रहे हैं, या बहरिया इज गिविंग यू द बेस्ट व्हाट दे कैन. इट्स द योर एटीट्यूड व्हिच इज गोइंग टू टेक यू फॉरवर्ड. दीस आर द सेम बुक्स आई टेल यू जो मिगिल में भी पढ़ाई जा रही होंगी, जो लम्स में भी पढ़ाई जा रही होंगी, एंड स्टैनफोर्ड में भी पढ़ाई जा रही होंगी. हाँ ज़ाहिर है रिसोर्स से कुछ चीज़ें बेहतर होंगी, फाइन, कोई बात नहीं. हम पाकिस्तान है, अमेरिका नहीं है, डजंट मैटर. बट क्या यहाँ के लड़के बाहर जाके नहीं काम करते? क्या बाहर जाके एक्सेल नहीं करते? इनफैक्ट ज़्यादा करते हैं. सो द ओनली डिफरेंस आई से इज एटीट्यूड. गेट योर एटीट्यूड राइट, यू कैन conquer the world. This is the very good message from you guys कि आप लोगों का 20 साल का एक कैरियर और वो आफ्टर ग्रेजुएशन के, this is the message. Yeah, it's a very common problem. इसलिए मैं हार्ड वर्क, आपने काम करना है, और कोई काम छोटा या बड़ा नहीं है, और उन्हीं आपने काम करना है, और your attitude should be right. So this is the message I get from you guys. This is the learning for me. बाकी तो जब सारे हमारे ऑडियंस देखेंगे और नाराज होंगे, अंडे तो नहीं पड़ेंगे. वैसे शुक्र है अंडे में कभी नहीं. हमारी वेबसाइट, वो फेसबुक का पेज भी है, अगर यू नो इफ यू लाइक आवर म्यूजिक एंड इफ यू लाइक टू नो अ बिट अबाउट इट, इतना एक्टिव नहीं है बट यू गाइस कैन मेक इट एक्टिव. सो यू कैन गो टू lahu LAHU एंड फेसबुक पे है. It's facebook.com/lahu music, and lahu is LAHU music, so you can find us there. And let's hope you can जिस तरह आप लोगों ने, सब ने, हमारे साथ के लोगों ने हमें उस वक्त पंप करके और पुश करके यहाँ तक पहुँचा दिया, अल्लाह ताला और माँ बाप के बाद, तो हमें और आगे भी ले जाएं यार. लाइक करें और करें कुछ. I would like to thank you guys. Thank you so much for thank you media department here as well. Media department, the whole team, Sundal Mufti, everybody behind the scenes, you and the management. It's always a pleasure. It's always an honor coming back to our institute. And वही वाली बात, कुछ भी हम value दे सकें. Thank you so much. We're always available. Thank you for coming, guys. Thank you so much. Thank you very much. So I would like to thank you everyone. Thank you to our distinguished guests, and thank you to Bahria University media team and everyone. Absolutely. So it was a pleasure. Hope to see you guys soon. Thank you. Bye-bye. Goodbye.